हेलो 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 हाँ मैं ऑडिबल हूँ ठीक है ठीक है Good morning everybody. Sorry, good afternoon. Harshita, Preetam, good afternoon all. Good afternoon Preetam, good afternoon Harshita, good afternoon Shanu. All well? All well? Harshita, all well? Sorry, I can't hear you properly. Can you be more louder? Harshita, can you please be more louder? All well, ma'am. All well? Did you studied yesterday? Yes, ma'am. सब समझ आया? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. शानू, good afternoon. Good afternoon, ma'am. How are you? क्या हुआ तुम सब लोग इतने लो क्यों लग रहे हो? क्या दिक्कत है? बायो क्लास के लिए एक्साइटेड नहीं हो? चिंता मत करो. आई नो इट्स काइंड ऑफ बॉटनी थोड़ी बोरिंग होती है बट इट्स इंटरेस्टिंग. आई विल मेक योर लेक्चर इंटरेस्टिंग. डोंट वरी. इज इट टाइम? Okay, ma'am. क्या हुआ? एनर्जी नहीं है? हम्म हम्म एनर्जी नहीं है? High energy. Okay. Yeah, I need a yes, ma'am. Will be, ma'am, screen is not clear. You cannot see the screen, Preeta? Is it clear now? Everybody can see the screen? मैम बहुत सारा स्लाइड आ रहा है एक साथ में. बहुत सारा स्लाइड आ रहा है एक साथ में मतलब? Components of cells. यही स्लाइड्स आ रही है? हम्म नो मैम. तो क्या हो रहा है? प्रीतम? मैम यूजर्स नेम और जो चैट वाला आ रहा है मैम, और मैम हमारे स्क्रीन में जैसे आना चाहिए वैसे आ रहा है. स्क्रीन इज नॉट शेयर. कंपोनेंट्स ऑफ सेल नहीं दिख रहा आपको? किसी को भी नहीं दिख रहा? हर्षिता, शानू? No, ma'am. No, ma'am. Just a second. Screen is not visible. You are now muted. No, screen is not shared.
Now is You are it now clear? unmuted. Yes, ma'am. गल गया पट. Now can you see the slides? All the Yes. slides has been visible? Okay, cool. Okay. So basically, can we start the today's lecture? Yesterday lecture में तुम्हें कोई डाउट था किसी भी चीज को लेके? No, ma'am. कोई भी डाउट नहीं था? अब आप सबको क्या दिख रहा है? कंपोनेंट्स दिख रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सेल? Yes, ma'am. अब दिख रहा है सब सही? ओके ओके. सो बेसिकली कल किसी को भी डाउट नहीं था. दीपक, यू? Now starting with today's lecture, that is start from cell wall. Okay, we have studied that cell wall is the most outermost layer. What is it? Cell wall is the outermost layer. Okay, all clear? Cell wall. Okay, इसके आपको क्या क्या बातें जानना है? That it is the outermost layer. It is totally absent in animals. Totally absent in animals. Okay, and can you appreciate this wall, outermost layer? Shanu, Harshita, Deepak, Preetam, can you see? No, ma'am. Components of cell is there. 1 second. Can you see now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Just a second. You are now muted. बच्चों को दिख नहीं रहा है. कंपोनेंट्स ऑफ सेल ही दिख रहा है. मतलब जो स्क्रीन शेयर हो रखी है जो तुमने अभी बोला वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. नहीं हो रहा. Okay, so You are now unmuted. okay, so basically what I'm trying to say, can you see the outermost layer? That is cell wall. What is it of? This is cell wall. It is made up of, it is the outermost layer. You are now muted. Ma'am, students can see the this slides only. जो मैं लिख रही हूँ वो बच्चों को दिख नहीं रहा. Mute है वो. You are now unmuted. Okay, now can you see? Harshita, Deepak, Rinki. Yes, ma'am. Now Yes, can you ma'am. see the outermost layer? Yes, ma'am. So basically, आपको सेल वॉल के बारे में क्या क्या जानना है? That
It is the most outermost layer. Outermost layer absent in animal. Okay. क्या सेट कर दो? Okay. Now the cell wall is mainly composition. Composition क्या है cell wall की? Basically it is made up of cellulose, galactose, hemicellulose and pectins. Can you get it? समझ आया? शानू, रिंकी, प्रीतम, हर्षिता. Yes, ma'am. So basically किस से बना होता है? That is, it is the outermost layer absent in animals. Composition क्या है? Cellulose, galactose, hemicellulose and pectins. Okay, and mannans. What are mannans? They are the monomer of glucose. Am I clear till here? Am I clear till here? Please unmute yourself so that I can have an interactive lecture with you people. Yes, ma'am. Okay, can you? This is a slide of the microscopic level of a cell wall. Can you all see it? Can you all see it? Harshita? Yes, ma'am. Shalu? Yes, So this is a Yes, ma'am. microscopic level पे आपको cell wall ऐसी दिखती है. Okay? Now, इसके functions क्या होते हैं basically? आपको ये protection देती है. ठीक है? It provides the endoskeleton. ठीक है? Endoskeleton का मतलब क्या है? That means it provides the shape to you. Okay? It basically protect from outer material or infection. समझ आया यहाँ तक? एंड हेल्प्स टू, देखो सेल वॉल इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चा, एक तो बेसिकली एक्स्ट्रा बैरियर होता है और सेल के अंदर हर एक चीज बाहर नहीं जानी चाहिए या हर एक चीज अंदर नहीं आनी चाहिए. समझ आ रहा है? प्रीतम, रिंकी, शानू, दीपक. Yes, ma'am. So to protect it from basically this barrier called cell wall. Okay. इसके बाद क्या है? It is rigid. It is rigid होती है cell wall. Okay. Non-living होती है. Dead होती है. ठीक है. First इसको किसने देखा था? That is Robert Hooke ने देखा था. That is कॉर्नियम देखी थी उसने बाघ की. वो क्या देखा था? सेल वॉल देखी थी उसने, जो हनीकॉम अपीयरेंस था. You know that honeycomb appearance, right? Yesterday I have showed you what is honeycomb appearance. It is clear now? Harshita? Is it clear? Yes, ma'am. Is it clear? Any doubt? Okay.
मेम्ब्रेन पे. ओके, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको और क्या क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It present in both plant and animal cell. Okay, now इसमें क्या है? That it is mainly composed of phospholipids. किससे बना होता है? Phospholipid से बना होता है, कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, cholesterol, phospholipids, and the rest will be your protein. Am I clear till here? Harshita, Preetam, Yes, ma'am. can you appreciate this diagram? Now, what is all about? It is in, see, this is a lipid bilayer. Okay, now lipid bilayer जो individual है, that is what? This is head, which is hydrophobic. Hydrophilic. Okay, and the tail is hydrophobic. See here, this is an head and this is tail. Okay, head is basically what? It is hydrophilic, that is water loving, and tail is what? Hydrophobic. फोबिया से याद रखो, फोबिया मतलब hatred of fall, hate of water. Okay, like away from water. फोबिया क्या होता है? जिससे आपको डर लगता है, right? तो it goes away from the water. Am I clear till here? Yes, ma'am. Okay, now talking about these are embedded protein. Okay, protein channels inside the cytoplasm. Okay, and this is mainly composed of phospholipids, which is basically manufactured by the endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए वो करता है, क्या काम करता है? बेसिकली उसका क्या काम होता है? दैट टू मेक लिपिड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एम आई क्लियर टिल हियर? रिंकी, शानू, प्रीतम, हर्षिता. Yes, ma'am. Okay. Yes, Now, ma'am. if I talk about, there is a structure which I was talking about yesterday of cell wall. It is this is a middle layer known as middle lamina. Okay, and this is primary layer and this is secondary layer. Okay, now this middle lamina made up of pectin से बनी होती है. किससे बनी होती है? Pectin से बनी होती है. And this is primary cell wall and secondary cell wall. Okay, am I clear till here? Any doubt till now? No. No, ma'am. Okay, आगे चले. एक और फंक्शन इसका याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, इट हेल्प्स इनटू सेल टू सेल इंटरेक्शन. दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा. Plasmodermata. एग्जैक्टली, ठीक है. सेल टू सेल इंटरेक्शन में कौन हेल्प करता है? सेल वॉल हेल्प करती है, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा. ओके, क्लियर? इतनी बातें आपको सेल वॉल की पता होनी चाहिए. स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको. व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल लमाइना? बिकॉज इट इज बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल. ओके, एम आई क्लियर? नाउ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगल ने दिया था एंड निकलसन ने दिया था. इन विच ईयर?
1972 में। कौन से ईयर में दिया था? 1972 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, this is a link I have given you, I have shared you people. Okay, you can go and check it on. There is a small video on fluid mosaic model. Okay, why it is called fluid mosaic model? As it gives the appearance of mosaic. Okay, it gives the appearance of, this is lipid bilayer. This is lipid bilayer. These are what? Tails are hydrophobic or hydrophilic? Who will tell me? Harshita. Harshita? Hydrophobic. Yeah. Phobic. Hydrophobic. Okay. Whereas heads are water loving, that is Hydrophilic. hydrophilic. And this these gaps are filled with what proteins? Cholesterol. Just a second. Cholesterol. Okay. Am I clear till here? Now, what are the functions of cell wall? Cell wall का क्या function होता है? Basically, आपको क्या provide कराता है? Function provide, protection provide कराता है, mechanical support, and it is what? Semi-selective, permeable membrane. Am I clear? What is semi-selective permeable membrane? That is the most, if it is a cell membrane. Okay, so only the important contents or molecules can pass through it. Not every molecule can pass through it. मतलब कि ये जो cell membrane है या ये plasma membrane है, it just resemble to guard. आपका सिक्योरिटी गार्ड आपने देखा है ना, व्हाट इज ऑल अबाउट, वो क्या करता है? ठीक है, ही बेसिकली गार्ड्स की कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। ठीक है, जो लोग भी जिनकी भी परमिशन हम नहीं देते, ठीक है, वो आने नहीं देता। ओके, एंड ओनली द एसेंशियल वन और इम्पोर्टेंट वन कैन पास थ्रू इट। एम आई क्लियर है? हर्षिता, प्रीतम, Yes, ma'am. दीपक, Yes, am ma'am. I clear? What I'm trying, समझ आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. Okay, ठीक है। Now these are the movement of water which is known as what? Osmosis. Movement of water को क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, नाउ दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसे होता है? देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं? 3। दैट इज 3 types. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटिव। सॉरी दीपक, क्या बोला आपने? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। Facilitate. Yes, ma'am. Okay, now if I talk about what is a facilitative transport, some molecules need what? Some molecule need some proteins to cross across the membrane. Okay, so basically क्या है ये? Carry. That, sorry, क्या बोला प्रीतम आपने?
Carrier proteins Exactly. जो These first are exactly they are the Korean. carriers proteins which helps to transport some molecules across the membrane. Okay, it do not take any energy. इनमें कोई energy नहीं लगती. Okay, and what is a passive transport? Passive transport is what that molecules can come across without using High energy. concentration to low concentration. That is osmosis or through diffusion. Do you know all what is diffusion is? When the particles move from the higher concentration to the lower concentration. Am I High clear? concentration to the low concentration. Exactly. Okay, now if I want to say what is an active transport. Okay, so what is an active transport, bache? Lower That concentration to higher concentration. Use of exactly. ATP. For example, Ma'am, this is a against the concentration. yeah, exactly. Against the concentration. अगेंस्ट द Yes, कंसंट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इधर K प्लस ज्यादा है, ठीक है, और इधर मेरे पास कम है, ठीक है, इधर मेरे पास Na एक ही है, ठीक है, तो मैं किधर मूव करूंगी, मैं किसको किधर मूव करूं? अगर मेरे पास इधर कम है, ठीक है, और इधर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इट मूव्स टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. अगर मुझे ये चीज यहाँ लेके जानी है तो ऑब्वियसली आई नीड एनर्जी, नो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांटेड कि मेरे पास 10 टॉफीज हैं, ठीक है, आई हैव 10 टॉफीज विद मी, ओके, बट आई रियली वांट देम टू पुट इट ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं कोई भी ना हो, ठीक है, तो मुझे इन सबको उठाने में थोड़ी तो एनर्जी लगेगी ना. अगर मैं अपने से ज्यादा वेट का सामान अगर उठाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल नाउ टॉफीज, अगर मैं बंडल्स की बात करती हूँ, आया वो बंडल्स, ओके, और अगर मुझे ये यहाँ से इधर लेके जाना है where the space is empty, so obviously I need some energy, no. So what is an active transport in totality? That when the concentration is moving from lower to higher concentration. Am I clear with you people? For example मेरे पास एक और बात Yes, समझा ma'am. देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इधर K प्लस ज्यादा है, ठीक है, और Na यहाँ पर है, ठीक है, K प्लस भी है इधर, ठीक है, अगर मुझे इस Na को अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेके जाना पड़ेगा तो मेरे को तो एनर्जी की चाहिए, मुझे एनर्जी की जरूरत चाहिए या नहीं चाहिए? मैम चाहिए. तो इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम एनर्जी किस फॉर्म में यूज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. किसकी फॉर्म में यूज करते हैं? एटीपी की फॉर्म में यूज करते हैं. एटीपी की फॉर्म में. समझ आया यहाँ तक? क्लियर? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Saturday you guys having a paper, okay, and cell is also included, ठीक है, पूरा सेल ऑर्गेनल सब आ रहा है, पूरा सेल चैप्टर आएगा, ओके. सो टुमारो आई विल बी हैविंग यू विद अ रिवीजन क्लास ऑफ बोथ. मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी तुम्हें, ठीक है. आई विल मेक सम मिक्स्ड क्वेश्चन फ्रॉम सेल, फ्रॉम ब्रीदिंग एंड फ्रॉम digestion. And Digestion. tomorrow I'll be covering you that small topic, that is regulation of gases, okay. Okay, Okay, ma'am. okay, ठीक है. Now what is it? Now the next is endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? Anybody knows it? It is a tubular vesicle transporting cell organelle. Okay, समझ आया? It is tubular vesicle transporting cell organelle. Can you appreciate this diagram? This hole is of endoplasmic reticulum. Okay, this is a nuclear pore. This is nuclear envelope, okay, and
जिस पे कैन यू अप्रिशिएट दिस सेक्शन जिसमें पर्पल डॉट्स नहीं है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट. Okay, and this is rough endoplasmic reticulum. Okay, this is a vesicle. Can you appreciate this is a vesicle formation में tubular structure, इन्हें हम सिस्ट्रेट कहते हैं. क्या बोलते हैं हम इसे? क्या बोलते हैं हम इन्हें? दीपक क्या बोलेंगे हम इन्हें? हर्षिता? Rough endoplasmic. Rough endoplasmic reticulum, but these vesicles, what these vesicle calls as? Sister नहीं बोलते हम इसे? हर्षिता? Yes, ma'am. हर्षिता, am I clear? Yes, ma'am. Okay. Now, this rough endoplasmic reticulum, yeah, there is another pic. Same as it is, the smooth ones do not have ribosomes, whereas rough endoplasmic have ribosomes. Ribosomes का क्या काम होता है? What is the function of ribosome? Protein synthesis. Am I right? Yes, ma'am. Okay. Now, what are the functions? Okay. Now, tell me what are the functions of rough endoplasmic reticulum के क्या-क्या functions होते हैं? First of all, it helps in transporting materials. Protein synthesis. Transporting Protein materials. synthesis. Okay, protein synthesis. Okay. Now, smooth endoplasmic reticulum का क्या function होता है? Smooth ER का क्या function है? Helps in phospholipid Lipid formation. lipid formation for the cell wall. 1 second. Yes, ma'am. That is lipid formation. Okay. And rough endoplasmic का क्या काम होता है? Protein synthesis. Exactly. Rough endoplasmic का क्या काम होगा? Same protein synthesis. And इसके अलावा क्या काम होता है? That is lipid secretion, mechanical support. Okay. And detoxification. लिख लो ये detoxification. And हमें detoxification क्या होता है? intracellular exchange. Yes. बेटा अगर कोई भी Detoxification क्या बेसिकली होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, अगर कोई भी सेल एंडोटॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है तो उसको हटाना, ठीक है, उस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर देना, दैट इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन. ओके. बहुत सारे सेल एंडोटॉक्सिन्स बनाने लग जाते हैं बॉडीज में, ठीक है. सो टू रिड ऑफ इट, टू बेसिकली इसको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, ठीक है. कौन? ER, एंडोप्लाज्म. एम आई क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. Okay. This is what? This is Golgi apparatus. Okay, your Golgi body. Now, Golgi bodies क्या होते हैं? They are the stacked, flattered, membranous vesicles. क्या होते हैं ये? Stacked, flattered, membranous vesicles. Okay? They are parallelly arranged. कैसे arranged होते हैं? They are parallelly arranged. It is first discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi ने इसे first discover किया था. Okay. So can you see this vesicles? These are also parallel called as cisternae. Now there have two phases होते हैं बच्चा, trans and cis phase. ठीक है. Can you appreciate this cis phase and the trans phase at the below one? Okay, what is cis? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. cis means same, right? And trans phase मतलब
they are Yes, ma'am. they are not same, Different. they are different. तो cis phase में क्या है, these vesicles are of same shape and size, but what about trans, they have inefficient मतलब different shape और size के होते हैं. ठीक है, सिस में क्या होता है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल जाता है और ट्रांस में क्या करता है, आउटगोइंग जाती है. ठीक है, बेसिकली जो गोल्जी apparatus का क्या काम होता है, दे हैव टू पैकेजिंग द मटेरियल, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, हम प्रोटीन मतलब उसे हम पैकेजिंग कर रहे हैं और उसे हम बाहर भेज रहे हैं, वेदर इट्स ऑफ इंट्रासेलुलर वेदर इट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर. एम आई क्लियर टिल हियर? यस मैम. नाउ ईच ये जो Yes, वेसिकल है वो उसका डायमीटर क्या होता है, दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर. ठीक है, नाउ कैन यू अप्रिशिएट दिस डायग्राम? आई वांटेड टू से समथिंग दैट see, this is a cell. Okay, now here what, this is what endoplasmic reticulum. Okay, it is a connecting tubular vesicle. ठीक है, ये क्या है, connecting tubular vesicle. ठीक है, now what is it of, यहाँ से पैकेजिंग मटेरियल आ रहा है, ये गोल्जी देख रहा. ठीक है, सिस इज द इनकमिंग, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है वो सीधा किसको भेज रहा है, सिस फेज में भेज रहा है. किसको भेज रहा है, सिस को. आपको समझ आ रहा है? सी बच्चा, क्या हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में Yes, क्या हो ma'am. रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, नाउ दिस प्रोटीन सिंथेसिस को पैक, अगर सपोज मैंने मिठाई बनाई है, ठीक है, तो अगर मैंने चॉकलेट बनाई है तो मैं उसे पहले पैक करूंगी, फिर तो मैं भेज सकती हूँ ना उसे. ऐसे तो करके मैं खुले मतलब नेकेड तो नहीं भेज सकती कि नहीं चलो, क्योंकि अगर मैंने नेकेड भेज दिया तो व्हाट इज ऑल अबाउट, उस पे जर्म्स लग जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, इट वोंट इट गेट कंटामिनेटेड, राइट. तो सेम एज इट इज प्रोटीन के साथ होता है. अगर प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है तो वो थ्रू सिस फेज में किस पे जाएगा, गोल्जी apparatus में जाएगा, गोल्जी बॉडी में जाएगा. देन थ्रू ट्रांस वेसिकल इट गोज आउट फ्रॉम द सेल, वेदर इट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर. अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस अंदर चाहिए होगा तो वो अंदर जाएगा, अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर को चाहिए होगा तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर जाएगा. ठीक है, साइमल्टेनियसली व्हाट लाइसोसोम्स डूइंग इट, दिस इज व्हाट सेल्फ फेगोसाइटोसिस कर रहा है अपना, जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं. ठीक है, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो एंडोसाइटोसिस करते हैं. एंडो मींस अंदर, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर. अगर सेम चीज ये बाहर हो रही होती, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस. क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सोसाइटोसिस. एम आई क्लियर? एक्सोसाइटोसिस समझ आया? Yes, ma'am. ओके, ये मैंने आपको बता दिया. इट्स मेनली परफॉर्म द पैकेजिंग मटेरियल, डिलीवर वेदर इट्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट्स. ओके, नाउ एक और चीज याद रखना, इट इज मेनली एब्सेंट इन, वन सेकेंड, इट इज मेनली एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज. आरबीसीज में ये एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं. ठीक है, वन सेकेंड, it is absent in mature RBCs, bryophytes. Okay, and also sieve tubes. Sieve tubes. Exactly, sieve tubes में भी absence होता है. समझ आ गया? क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. आगे बढ़े. Now lysosomes. Okay, lysosomes are very important. They are the suicidal bags.
क्या होते हैं ये? सुसाइडल बैग्स होते हैं, ठीक है। सुसाइडल बैग्स होते हैं, दे परफॉर्म व्हाट? एंडोसाइटोसिस। क्या करते हैं? परफॉर्म एंडोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? मतलब कि सेल को एंगल्फ करते हैं, ठीक है, एंड दे बेसिकली व्हाट? उसका लाइसिस कर देते हैं, सेल डेथ। ओके, एंडोसाइटोसिस जरूरी नहीं है कि लाइसोसोम्स एंडोसाइटोसिस भी करें, वो एक्सोसाइटोसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, मेरी Yes, राइटिंग ma'am. समझ आ रही है तुम सबको? अब थोड़ी क्लियर? सेल के अंदर Yes, ma'am. कैन यू अप्रिशिएट दिस इज अ सेल एंड दीज आर आउटर मोस्ट कवरिंग पे क्या हमारे पास? लाइसोसोम्स, ठीक है। ओके, एनी डाउट? इसकी शेप क्या होती No, है? ma'am. दैट इज इरेगुलर, इरेगुलर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, एंड दे आर हॉलो बिकॉज एंगल्फ करते हैं किसको? सेल्स को। एम आई क्लियर? इनका दूसरा नाम क्या होता है? स्कैवेंजर सेल्स भी बोलते हैं, स्कैवेंजर सेल्स, ओके ओके। शानू, रिंकी, प्रीतम, हर्षिता, दीपक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पे चलता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट? इट इज बेसिकली लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, that is largest cell organelle. It is basically rounded or rod like membrane, double membrane होता है guys, always remember this is a double membrane cell organelle। पूछ लेते हैं, important है कि double membrane cell organelles कौन कौन से हैं, ठीक है। so can you appreciate the outermost layer? that is called outer membrane, okay, and the inner membrane is packaging में होती है, that is recycled form में, that is known as inner membrane, okay। now what is सिस्टर ने? मैट्रिक्स। इसके अंदर सेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, ठीक है। इनके पास, इन सेल्स के पास अपना ओन क्या होता है? डीएनए होता है। कैन यू अप्रिशिएट दिस? कैन यू अप्रिशिएट? कैन यू अप्रिशिएट? हर्षिता, दीपक, हर्षिता, दीपक, प्रीतम, Yes, ma'am. क्या हुआ? नींद आ रही है? No. ओके ना, No, ma'am. नहीं नींद आ रही है तो बता दो, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहे हो तो मुझे लगा क्या पता नींद ही आ रही हो। नहीं आ रही नींद। हम नहीं आ ओके, रही नींद। बेसिकली जो रेस्पिरेटरी, दीपक हाउ इज योर हेल्थ नाउ? आर यू ओके? आर यू फाइन? Yes, ma'am. ओके, क्या हुआ था? हम कब थी दो ध्यान रखो भाई अपना, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज ऑल अबाउट, जो सिस्टर होती है, दैट कंटेन्स अ व्हाट? स्पेशल कंपोनेंट फॉर रेस्पिरेटरी फॉस्फोराइलेशन, ओके, लाइक क्लियर? कंपोनेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी चेन के फॉस्फोराइलेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। मैम प्लीज एक बार रिपीट कर देना।
Shanu, what I'm tell you about, 1 second, let me write it. It has special, नेटवर्क इशू हो गया था. कोई बात नहीं, they have special components for respiratory chain phosphorylation. Okay? Okay? Yes, ma'am. फॉस्फोराइलेशन हाँ, phosphorylation. ठीक है. Now, what is में क्या the होता है? फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? बेटा आपने फोटोसिंथेसिस सिस्टम 1 and 2 नहीं पढ़ा था, जिसमें फास्फोरस का हो Yes, रहा ma'am. था, उसी में दैट इज फॉस्फोराइलेशन. ठीक है. नाउ इसमें क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. बेसिकली मोटी मोटी बात है कि भाई इट helps ATP synthesis. it helps in basically formation of ATP. ठीक है. ATP फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन है. ठीक है. ठीक है. एक्टिव साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन है. इसे और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो. एनी डाउट? आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया? कोई भी डाउट है? इट कंटेन इट्स ओन डीएनए होता है इसके पास. ठीक है. और ये डबल मेम्ब्रेन है भाई, पहले ही बता रही हूँ, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन. ठीक है. समझ आया? यहाँ तक बात समझ आई? आगे बढ़े? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. अब हम बात Yes, करते ma'am. हैं प्लास्टिड्स की. ठीक है गाइस, कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं कंबाइंड क्वेश्चंस भी पूछूंगी. ठीक है. अभी मैं ये लेक्चर खत्म कर रही हूँ. इसके बाद व्हाट आई विल डू टू मेक यू, हाँ, हम इसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी मैं कल. ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस Okay. आ सकते हैं. ठीक है. और अब से मैं क्या करूंगी, हर लेक्चर के बीच बीच में आई विल आस्क यू क्वेश्चंस आल्सो. आई विल पुट अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर सो दैट यू कैन मेक एन हैबिट. जैसे मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे दीपक, दैट इज फ्रॉम द लास्ट ईयर्स नीट फ्रॉम 2015 टू 2020. लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड थे कि सेल से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. नीट इज नॉट अबाउट, वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि सेल वॉल की लेयर कौन सी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी. नो, इट विल आस्क यू व्हाट इज द फंक्शन, व्हाई इट इज प्रेजेंट, और किसने दी थी, ये भी पूछ सकते हैं. ठीक है. पूछा भी गया है ये. ना लास्ट जो कल के क्वेश्चंस थे वो इजी लग रहे थे. दीपक, हर्षिता, शानू और हर्षिता को तो लग रहे थे Yes, बिकॉज दे बोथ आर रिस्पॉन्डिंग. बट Deepak and Preetham, you are not studying, I guess. Why you guys are not responding to that? कल पढ़ा, फिर ठीक से पढ़ के नहीं, आज पढ़ा हूँ. अच्छा, आज पढ़ा है, आज समझ आया, सब कुछ क्लियर था आज? यस मैम, यस मैम. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं. ठीक है. प्लास्टिड्स हमने कल प्लाज्मिड भी पढ़ा था. ठीक है. अब आप लोग कंफ्यूज मत करना प्लास्टिड्स में और प्लाज्मिड्स में. एक मिनट. They both are different. Okay. Plastids क्या है? Can you appreciate this diagram? Okay. So basically plastids क्या है? Plastids are they are of different types. Okay.
बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है और प्रोटिस्टा में भी पाया जाता है। सम प्रोटिस्टा लाइक यूजीलिया में भी पाया जाता है। 1 सेकेंड, यूग्लिना यूग्लिना युग यूग्लिना यूग्लिना में भी पाया जाता है। ठीक है, एम आई क्लियर? नाउ दे आर ऑफ बेसिक टाइप्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्रोमोप्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, Leucoplast. क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। Leucoplast. क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली पिगमेंट्स होती है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरो में बता रही हूँ मैं, क्रोमो में नहीं। 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट इन अ 1 सेकेंड। हाँ, ड्रॉ कर लेते हैं। दे आर बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, एंड दे आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट ज़ैंथोफिल्स होती है, कैरोटिनॉइड होती है। ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ऑब्वियसली इट गिव्स ग्रीन टू द पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, एंड व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। ठीक है, बट दे हैव आल्सो कंटेन्स व्हाट? जैसे अमाइलोप्लास्ट है। अमाइलोप्लास्ट में क्या है? हमारे पास फैट्स स्टोर्ड होते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ठीक है, दे आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, एलिलियोप्लास्ट में क्या होता है? ऑयल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड प्रोटीनोप्लास्ट को और क्या बोलते हैं? ओलिगोप्लास्ट, जिसमें प्रोटीन, जिसमें बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन्स। ठीक है, am I clear? Can you see this diagram? एटलोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रोमा की। इट इज अ सेमी फ्लूइड। स्ट्रोमा क्या होता है? सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, इनर में can you appreciate this gray color fluid? This is a stroma। ठीक है, इसके पास एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से पीएस फोटोसिंथेसिस 1 या फोटोसिंथेसिस 2 जो डार्क रिएक्शंस है, आपको याद है, आपने पढ़ा होगा डार्क रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जो डार्क रिएक्शंस है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा हैज एंजाइम्स, दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। डार्क रिएक्शंस इन एंजाइम्स के वजह से होती है। ओके, एम आई क्लियर? Rubisco enzyme. Rubisco. हाँ, Rubisco enzyme एग्जैक्टली, रुबिस्को एंजाइम होता है। गुड, वेरी गुड। बेसिकली स्ट्रोमा क्या कैरी करता है? डीएनए, प्रोटीन, ठीक है, या राइबोसोम्स। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? स्ट्रोमा समझ आया? आगे चलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्राना। ग्राना क्या होता है? बेसिकली दिस इज वन ग्रानम। ठीक है, दिस सैक बाय सैक इज नोन एज व्हाट? थैलेकॉइड्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? थैलेकॉइड्स। Group of thylakoid. ग्रुप ऑफ ग्राना को हम क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड्स। एंड 1 ग्रानम, एक ग्रानम क्या होता है? 1। दिस इज अ स्फेरिकल राउंडेड, स्फेरिकल, अरे मेरी डॉक्टरों वाली राइटिंग, सॉरी। दिस इज स्फेरिकल राउंडेड
ओके, दिस इज बेसिकली 20, एक उसमें कितने स्टैक्स होते हैं, 20 to 50 मेम्ब्रेनस स्टैक्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब इन ग्रैनम के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। रिएक्शंस, जो लाइट रिएक्शंस होती है, जो लाइट रिएक्शंस होती है, समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, because ma'am. of presence of chlorophyll in granum, light reactions takes place। समझ आया यहाँ तक? आगे चलो। Yes, ma'am. राइबोसोम्स की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं सबसे ज्यादा। प्रोकैरियोटिक्स में इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज 50s, 30s, और जो यूकैरियोट्स में होता है ये 60s और 40s। 60s plus 40s. ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो व्हाई दिस कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दैट, मतलब व्हाट इज एस, ठीक है, व्हाई इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 50s, 30s, 60s, 40s। दीपक, डू यू नो? दीपक, हर्षिता, you know? Do you know why this configuration is divided into 50s or 30s or 60s or 40s? सब यूनिट्स I am not, you're not audible, Bacha. Can you please be more louder? देर the सब यूनिट्स Basically, yeah, sub units तो they are. So how this is basically, हम इसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगन की यूनिट्स होती है, उसके हिसाब से ये डिवाइड होता है। समझ आया? प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में। शानू क्लियर? रिंकी क्लियर? हर्षिता? Yes, ma'am. Now Yes, you ma'am. get, now clear? Now these ribosomes, can you appreciate it? These small balls. Okay. Now what's the function of this ribosomes? It is an active site for ATP synthesis. site for ATP. Protein synthesis. Sorry. अरे for 1 second. For protein synthesis. Okay. Now I should ask about what is cilia and flagella. Okay. मैम एक Cilia is a हम hair. ये हाँ। राइबोसोम में जो एस होता है इसका क्या होता है? बेटा ये मैंने अभी तो बताया, ये सब यूनिट्स होती है, ठीक है। इसको हम, ये जब हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं ना किसी भी सेल को, तो उस यूनिट की जिस डिग्री से ये वो होता है ना सेंट्रीफ्यूग, उसको उस सब को यूनिट्स के हिसाब से ये डिवाइड होता है, दैट इज 50s और 30s। ठीक है दीपक? ठीक है Yes, दीपक? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। सीलिया, फ्लैजिला, सिलिएटेड मेम्ब्रेन सुनी होगी आपने। सीलिया एंड फ्लैजिला इज फॉर मोटिलिटी। किस लिए होते हैं ये? मोटिलिटी। लोकोमोटरी हाँ, लोकोमोटरी ऑर्गन एग्जैक्टली, ठीक है। और दे आर द फिलामेंटस। क्या होते हैं ये? एक सेकंड, फिलामेंटस होते हैं ये, ठीक है। हाँ जी, माइक्रोस्कोपिक। हाँ, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, एंड हेल्प इन मोटिलिटी, लोकोमोशन, मोटिलिटी। में हेल्प करते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया इज मोबाइल, सम बैक्टीरिया आर नॉट मोबाइल, ठीक है। नाउ
बेसिकली जो आपका बेसिकली जो आपका फ्लैजेला होता है ना, दैट इज अ hook, neck, basal body, hook, neck, basal body and the tail. क्या होती है? tail. Am I clear till here? Everybody? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेसिकली किसके लिए काम करता है? समथिंग टू ग्रैब इट, कुछ कुछ मतलब पकड़ने के लिए, फूड के Encourage के एंड लिए। हाँ एंकरेज के लिए काम करता है, ठीक है, एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है, सेल मूवमेंट के लिए काम करता है, एक्सक्रीशन और सीक्रीशन में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है, ओके। ना इसका यूनिट दे रखा है, दैट सीलिया इज ऑफ 50 माइक्रोमीटर वेयर एज फ्लैजेला इज 1 माइक्रोमीटर, ओके। अब हम सबसे बड़ी बात करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है, प्लांट सेल में ये सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता है, ठीक है, वो साइड में होता है, ठीक है। आपने जरा प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप अगर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो प्लांट सेल में सबसे बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। वैक्यूल क्यों होता है प्लांट सेल में सबसे बड़ा? बिकॉज ऑफ स्टोरेज पर्पसेस, ठीक है। नाउ न्यूक्लियस इज व्हाट? इज अ ब्रेन ऑफ अ सेल. What it contains? It contains DNA. DNA, that is genetic material. Okay, what is contained? It contains genetic material. Okay, it contains genetic material. It is also known as brain of the cell. Okay, now it is surrounded by nuclear membrane. किससे सराउंड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। it can you appreciate this is a genetic material, okay. Now nucleolus is within the cell, within the nucleus. Nucleolus is different, nucleoplasm is different. nucleoplasm क्या होता है? it is a semi liquid, semi fluid होता है, it contains what? DNA, ठीक है, क्रोमैटिन, डीएनए बोल सकते हो, क्रोमैटिन भी बोल सकते हो, ठीक है। किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म इज व्हाट? वो जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल के अंदर, वैसे ही विद इन द न्यूक्लियस आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। समझ आ रहा है इतनी बात? न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज एन एक्टिव Yes, ma'am. साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। बेसिकली न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन। किसने बोला ये? हर्षिता, दीपक, न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? एग्जैक्टली, आरएनए सिंथेसिस। इट इज बेसिकली आरएनए सिंथेसिस के it is an active site for RNA synthesis, ठीक है। Am I clear, शानू? Yes, ma'am. ठीक है, दीपक सब समझ आ रहा है? दीपक, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, all right. Now what is this chromatin? क्रोमैटिन इंटरफेस, अभी हम जब सेल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, तो इंटरफेस के बाद जो आपका डीएनए होता है ना, वो क्रोमैटिन फेज में होता है, ठीक है। नाउ दिस क्रोमैटिन गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म व्हाट? क्रोमोसोम्स। क्या बनाने में हेल्प करता है? क्रोमोसोम्स। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फॉर्म्स क्रोमोसोम्स।
समझ आया? यहाँ तक बात क्लियर है? लाइक दिस इज व्हाट फर्स्ट इज योर क्रोमोसोम, सेकंड इज क्रोमैटिन, ठीक है, एंड थर्ड इज योर डीएनए हेलिक्स. Do you guys appreciate this? दीपक, प्रीतम, Yes, ma'am. शानू, समझ आया? Now, न्यूक्लियोलस मैंने Yes, आपको ma'am. बताया, that is conspicuous darkly stained spherical body होती है ये, that is found in nucleoplasm, ठीक है. Active ribosomal RNA synthesis के लिए, मतलब कि राइबोसोम भी सिंथेसिस होते हैं, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस भी होता है, ठीक है. एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. ओके, एम आई क्लियर टिल हियर? सी दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, और इसके साइड में क्रोमैटिन दिख रहा होगा, और दिस न्यूक्लियस एनवेलप के अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक है. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. नाउ माइक्रोबॉडीज के बारे में बात करते हैं. दैट इज माइक्रोबॉडीज आर द सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स, ठीक है. इस पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछते नहीं है, ठीक है. जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया. हाँ, एक और चीज इम्पोर्टेंट थी जो मैंने नहीं बताई है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियोप्लाज्म बता दिया, क्रोमैटिन बता दिया, ठीक है. नाउ देयर आर सम पोजीशन ऑफ सेंट्रोसोम्स बेस्ड ऑन द सेंट्रोमेयर. सेंट्रोमेयर जो होते हैं ना, क्रोमोसोमल की पोजीशन, मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है, MAST. मैं आज समोसे और टी पिया, ठीक है. MAST आप अपना भी कोई निमोनिक बना सकते हो, ठीक है, बट मैंने ये बनाया कि मैंने आज समोसे चाय पिया, ठीक है, टी पिया, ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर पोजीशन, ठीक है, दे आर व्हाट मेटासेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक Submetacentric. एंड टीलोसेंट्रिक, Telocentric. ठीक है. समझ आया? ये चार चीजें आपको समझ आई. अब इनकी जो पोजीशंस होती है, टीलोसेंट्रिक कैसे होता है, लेट मी ड्रॉ फॉर यू. सी, जो टीलोसेंट्रिक है उसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो अबव होता है. दिस इज टीलोसेंट्रिक. माय क्लियर? ठीक है. इसमें जो आर्म्स होती है वो शॉर्ट होती है और एक लॉन्ग आर्म्स होती है, ठीक है. जो एक्रोसेंट्रिक होता है उसमें भी सेंट्रोमेयर अपवर्ड्स होता है, मगर आर्म्स जो होती है वो इतनी भी शॉर्ट नहीं होती, ठीक है. समझ आ रहा है? सब मैम मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक पे तो हाँ, टीलोसेंट्रिक पे टर्मिनल पे आ जाती है, हाँ एक बेटा, तो साइड ही होती है हाँ, तो क्रोमोसोम। टर्मिनल भी तो बनाई है जिसमें आपका जो शॉर्ट आर्म जो है वो दिख ही नहीं रहा, बहुत छोटा है, ठीक है. हाँ, ऐसा नहीं होता है कि इट विल गोज टू टर्मिनल टू सेंट्रिक ही जा रहे हैं हम, ठीक है. बट इतना भी नहीं होता है कि आपकी आर्म्स ही नहीं दिखती, ठीक है. टर्मिनल पर होता है बट आर्म्स आर मैम मेरे को लगा कि एब्सेंट होती है इसमें एक साइड से। नो 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 टीलोसेंट्रिक नो 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 प्रेजेंट होती है आर्म्स, कैसे Okay, एब्सेंट हो ma'am. जाएंगे, ठीक है. ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा टीलो, दैट मींस चाय पी लो, ठीक है. दिस इज व्हाट समोसा, समोसा की जगह आप कुछ भी कर सकते हो यार, ठीक है. मुझे समोसा पसंद है तो मैंने समोसा लिख दिया, ठीक है. इसमें जो मूव कर रहा है, दिस इज टर्मिनल से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रहा है इसमें, देयर आर शॉर्ट एंड लॉन्ग.
ठीक है, अब मैं सब मेटासेंट्रिक में इट इज नॉट द प्रॉपर सेंटर बट इट विल स्लाइटली ये सेंटर पर, दैट इज सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, एंड व्हाट इज सेंट्रिक, दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ये सेंट्रोमियर। ठीक है, एंड दीज आर व्हाट situated by kinetocosh. What are kinetocosh? Kinetocosh क्या होते हैं? What are kinetocosh? दीपक, हर्षिता। मैम जो स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट वाली साइड, Exactly, that is known as kinetocosh. ठीक है, so now I am done with this chapter. Okay, cell chapter. plastids, ma'am. Types of plastids. वो बताना था एक बार, बता रही। ठीक है, अभी रुक जाओ। सी बेसिकली एक और चीज मैं बताती हूँ, दैट इज न्यूक्लियस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दिस फ्लूइड इज व्हाट, इसको हम कैरियो लिम्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, कैरियो लिम्फ भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब तुमने क्या पूछा था हर्षिता मुझसे, प्लास्टिड्स के टाइप्स पूछे थे। 3 टाइप के होते हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर ज़ैंथोफिल्स होते हैं। ठीक है, दे गिव कलर लाइक रेड और वो ब्राउन। ओके, एंड these are chloroplast, it contains chlorophyll, it gives green pigmentation. And what is leucoplast, कोई भी पिगमेंट नहीं होती, but if it contains carbohydrates तो amyloplast। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैम सैट डीएनए इम्पोर्टेंट है क्या बेटा, कौन सा डीएनए? वो जो सैटेलाइट डीएनए वाला था तू, मैं वो सैटेलाइट डीएनए कोर्स में कहीं पता नहीं था थोड़ा। सैटेलाइट वो इम्पोर्टेंट डीएनए है? नहीं, सैटेलाइट डीएनए कोर्स में है नहीं बेटा, इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर मी। ओके मैम। माइलोप्लास्ट हो गया, और अगर इसके अंदर ऑयल्स है तो इलियोप्लास्ट हो गया। ठीक है, और अगर प्रोटीन्स है तो ओलुरोप्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट। एम आई क्लियर? समझ आया हर्षिता? समझ आ गया? कोई डाउट? ठीक है, आई विल फिनिश दिस चैप्टर हियर। ठीक है, नाउ यू विल स्टडी टुडे, गेट योर डाउट्स जितने हो सकते हैं भर के। टुमारो आई हैव अ लेक्चर फ्रॉम 6 to 7। ठीक है, 6 to 7:15 तक का मेरा लेक्चर है। देन आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस, मैं उसके साथ तुम्हारी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ठीक है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस? यस आशुता, रेगुलेशन
हाँ, रेगुलेशन ऑफ गैसेस मैं कल, हाँ, रेगुलेशन ऑफ गैसेस मैं कल स्लाइड में इंक्लूड करके लाऊंगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। नाउ बस। और तुम्हें मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर है, प्लीज अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। नहीं आता है पेपर तो भले ही उसको छोड़ देना, डोंट अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। और कोई डाउट? और कोई डाउट? नो मैम। ऐसे नो मैम बिल्कुल ही नो मतलब, मैम। ऐसे बिल्कुल ही डिस्कशन है, शान, हाँ कल टेस्ट हो गया या डिस्कशन हो गया? कल तो डिस्कशन है, सैटरडे इज योर टेस्ट, ओके। ओके। सो शानू इतना रोते रोते ओके मैम क्यों, टेस्ट देने में इंटरेस्ट नहीं है, क्लास बोरिंग लग रही है? मैम है टेस्ट। अच्छा, और क्यों क्लास बोरिंग लग रही है? नो मैम। ठीक है, आई नो इट्स वेरी हेक्टिक कि यू नो ऑनलाइन लेक्चर्स एंड स्टडी, बट यस व्हेन यू बी अ डॉक्टर इट्स ऑल वर्थ इट, ट्रस्ट मी, ओके। जब अच्छे डॉक्टर बन जाओगे तो दिस इज जस्ट लाइक यू नो योर कम बैक, ठीक है। यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स टू बी योर डॉक्टर, ऑब्वियसली लाइफ विल गिव पे बैक टू यू, ठीक है, ओके। सो ओके मैम। या चलो, ओके, टाटास, बाय बाय, सी यू प्यारे थैंक यू प्यारे, मैम। क्या वेलकम बेबीज, ओके। ओके शानू, प्रीतम, हर्षिता, दीपक, बाय मैम। बाय, हैव अ गुड डे। खूब जाके अब इंजॉय करो, आराम करो, पढ़ाई भी करो क्योंकि थैंक यू मैम। सैटरडे पेपर है। और मेरे को इन इस बैच में से किसी में भी बायो में कम मार्क्स आए, मैं सच बता रही हूँ, वहीं आके घरों के एक एक के घर में घुस घुस के बायो की बुक्स और छोड़ के जाऊंगी, ठीक है। अब तुम जैसे इतने बड़े बड़े बच्चों को मारा थोड़ी जा सकता है, ठीक है। सो या प्लीज अच्छे से, मेरी मेहनत भी नहीं और अपनी मेहनत भी वो नहीं करनी चाहिए, अच्छे से पेपर करना, कल मैं और लेक्चर दूंगी इस पे, ठीक है। चलो बाय, टीसी। मुझे लगा अभी आके बोलने वाला है मैम हमने जल्दी लेक्चर खत्म कर दिया। आप तो टाइम पर खत्म करती पूरा, ना आगे ना पीछे।